कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। When they walked into my office, I did not take sir even a second, because शिवराज जी का चेहरा मेरे सामने एकदम आ गया और शिवराज जी सॉफ्ट हैं पर अंदर से बहुत सख्त है। ये अपनी बात भूलते नहीं। मैंने वादा कर लिया और कहीं और चला जाऊंगा, ये बात वो कभी नहीं कहेंगे और मुझे हमेशा डर लगता रहेगा कि पता नहीं कब कह देंगे। तो ये मौका सुब्रत जी और विवेक ने आपसे छीन लिया है। If democracy has to function, constitution has to function, all institutions under the constitution are required to keep within their bounds. Democracy can be best nurtured. It can blossom. It can impart healthy impact societally and for welfare of the people. If constitutional institutions are in sync with each other, they confine their actions to the limits set by the Constitution and to serve the larger public interest, they are in sync with each other. Sir, I would indicate any transgression by any constitutional institution, howsoever defined, howsoever subtle, howsoever non-invasive, creates a ripple that becomes, unfortunately, a tsunami. We have seen recently innocent observation of the court. And mind you, courts, judges sit from 10:30 to 4 o'clock. An observation which is no more than a small ripple is put in high decibel by media and creating all kinds of situations that certainly can't be called as wholesome. I would therefore strongly urge and appeal, the time now has come when a fresh look be taken so that all institutions, legislature, executive and judiciary, confined to the role prescribed for them by the Constitution. This will be good for the institutions. This will be good for the country. This will help rule of law prevail rather than there being law by any one of these institutions or any other authority. I should not be misunderstood that I am focusing on one institution. All three institutions are on the same page. All three institutions, that is legislature and executive as also judiciary, have to think within. And I am sure those at the helm of affairs will bestow attention on this very critical aspect so that our country, which is on the rise, continues in that journey. Sir, I am addressing Justice Kaul in particular after being enthused, motivated, inspired by your discourse. We are passing through a phase, sir, where secrets are always open secrets. A secret in the executive at any level, a secret in the judiciary at any level, a secret in another format is an open secret. And that open secret no one is prepared to discuss. That perhaps is travesty, I would say not of justice, but
of our entire system. Gone are the times when things could be decided behind the curtain and nobody would ever come to know it. The very concept of declassification of documents after some decades is irrelevant today. I would therefore urge transparency and accountability are non-negotiable. Pains me terribly. For a simple reason, judges can't defend themselves in public domain. I was governor of West Bengal for 3 years. I have seen it myself. There has been a reflection by the former Chief Justice of India that swift action should be taken against those who take on judges, target individual judges. Action was taken, but in isolation. Members of the bar and the media have to come forward to take cudgels with everyone concerned so that our judiciary, which evokes, I can say without, I think without fear of any contradiction, evokes instant public response. That is why a judicial commission evokes confidence, unlike a non-judicial commission. I am sure members of the bar, legal fraternity, and media in particular, will become foot soldiers to defend the judges when they are targeted, and that will be their great service to the country at large. जस्टिस J.S. वर्मा, जिनका नाम सुनते ही मध्य प्रदेश का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और न्याय जगत गर्व से भर जाता है। सबसे पहले मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और आयोजकों को धन्यवाद देता हूं कि उनकी स्मृति में यह व्याख्यान माला रखी है। और इस कार्यक्रम में पधारे हुए भारत के सम्मानीय उपराष्ट्रपति, जो आपके परिवार से आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बहुत अच्छे अधिवक्ता रहे हैं, बहुत सहज हैं, सरल हैं, विनम्र हैं और मध्य प्रदेश में पहली बार आए हैं। मैं केवल अपनी ओर से नहीं, केवल आपकी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से मध्य प्रदेश की धरती पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और तालियां कर मध्य प्रदेश वाली वजह से आपका हृदय से स्वागत। हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के कर्मठ और यशस्वी राज्यपाल माननीय मंगू भाई पटेल जी, माननीय न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट श्री संजय किशन कौल जी, मध्य प्रदेश की धरती से ही जो आते हैं, माननीय न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट श्री J.K. माहेश्वरी जी, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्रीमान रवि मलिमथ जी, आदरणीय विवेक तनखा जी जो चेयरमैन है जस्टिस J.S. वर्मा मेमोरियल कमेटी के और राज्यसभा के सांसद, आदरणीय विजय चौधरी जी, शशांक शेखर जी, इस अवसर पर कई हस्तियां यहाँ उपस्थित हैं, आदरणीय श्रीवास्तव जी, मेनन जी सहित अनेकों ऐसे लोग हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। सुप्रभा वर्मा जी भी यहाँ उपस्थित है, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ, उनका भी यहाँ स्वागत है। मित्रों, जस्टिस वर्मा जैसा मैंने प्रारंभ में बताया मध्य प्रदेश की धरती से आते थे और विवेक जी भी कह रहे थे वो इतने सख्त और कठोर थे कि जूनियर उनके सामने थर-थर कांपते थे, लेकिन अपने फैसलों से उन्होंने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जिसको ये देश कभी भूल नहीं सकता। पूरा देश में केवल न्याय जगत की बात नहीं, उनके कई फैसले ऐसे थे जिन्होंने ये स्थापित कर दिया
रूल ऑफ लॉ, रूल बाय लॉ को कैसे फॉलो किया जाता है। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन 1997 में महिलाओं के गौरवपूर्ण जीवन जीने के लिए मौलिक अधिकार को सुरक्षित बनाने वाला उनका एक बड़ा फैसला विशाखा केस में आया था। आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, विशाखा केस की सुनवाई के दौरान कामकाजी बहनों के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए उन्होंने जो गाइडलाइन बनाई वो आज पूरे देश में विशाखा गाइडलाइन के रूप में लागू की गई है। इस गाइडलाइन के आधार पर भारत की संसद ने क्रिमिनल लॉ में कई आवश्यक संशोधन किए थे। मित्रों, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, महिलाओं के हक में 2012 में उनकी कलम से जो अनुशंसाएं निकली, उसके लिए तो ये देश जस्टिस वर्मा का सदैव ऋणी रहेगा। जस्टिस वर्मा ने निर्भया कांड के कलम को धोने और ऐसी घटनाएं आगे ना हो इस दिशा में जो योगदान दिया है, उसे ये देश कभी भुला नहीं पाएगा। न्यायपालिका के क्षितिज के विस्तार में जस्टिस वर्मा जी का योगदान सदैव याद रखा जाएगा। 1912 में निर्भया कांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, और तकलीफ की बात यह है कि आज भी इस तरह की घटना कभी कभी देश में घटती रहती है। इसके बाद क्रिमिनल लॉ में संशोधन के लिए जस्टिस वर्मा जी की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया था, जो कि वर्मा पैनल के नाम से जानी जाती है। इस पैनल द्वारा जो अनुशंसाएं की गई, उनको स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार ने कानून में आवश्यक संशोधन किए थे, और वे कुछ ऐसे संशोधन हैं जो भारतीय न्याय व्यवस्था में मील के पत्थर के रूप में जाने जाते हैं। इस संदर्भ में मैं केवल एक निवेदन, क्योंकि आज संयोग से न्यायपालिका भी है, विधायिका के भी कई मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, और कार्यपालिका के लोग भी कहीं ना कहीं भले कम संख्या में हो, लेकिन आज यहाँ बैठे हुए। सचमुच में हम सबके मन में एक बड़ी चिंता है। अभी अभी भोपाल में घटना घटी, आप लोगों ने पढ़ा होगा। छोटी सी बेटी 3 साल की आया बस में थी, बावजूद इसके ड्राइवर ने अनैतिक आचरण किया। अब कई बार जब ऐसी घटनाएं घटती है तो समझ में नहीं आता कि कदम और कैसे उठाए जाएं। मैं आपको बताते हुए दुखी हूं कि यौन उत्पीड़न की और विशेषकर मासूमों के साथ, बच्चों के साथ जो अनैतिक घटनाएं घटती है, उनमें से 92% परिचितों के द्वारा और उनमें से कुछ रिश्तेदारों के द्वारा भी की जाती है। मध्य प्रदेश में हमने कानून बनाया, मध्य प्रदेश विधानसभा में शायद सबसे पहले मध्य प्रदेश ने किया था कि मासूम बेटियों के साथ जो दुराचार करेगा वो सीधे फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए। इस तरह का मध्य प्रदेश की विधानसभा ने विधेयक पारित किया। सजा कई लोगों को, मैं समझता लगभग 76 लोगों को त्वरित फैसले करते हुए, और कई फैसलों में तो कोई 62 दिन में, मतलब रिकॉर्ड टाइम में न्यायपालिका ने फैसले किए। लेकिन वास्तविक फांसी तो होते होते वर्षों लग जाते हैं। देखिए, जब तक इस तरह की घटनाओं में कठोर और कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक मुझे लगता है कि जिनका कोई चरित्र नहीं है, क्योंकि सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल रहे, लेकिन दुष्टों के लिए वजह से ज्यादा कैसे हो सकता है पूरा सिस्टम, और अंततः न्यायपालिका जिस पर देश का सबसे ज्यादा भरोसा है। सचमुच में आज भी ये कहते हुए गर्व होता है कि आम आदमी आज भी आंख बंद करके किसी पर भरोसा करता है तो वो भारत की न्यायपालिका पर भरोसा करता है। उसको लगता है कि कोर्ट का मामला है, मतलब न्याय होगा ही होगा। और इसलिए ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिन पे हमको और गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि और तीनों, विशेषकर विधायिका को और न्यायपालिका को बैठ कर सोचना चाहिए। मध्य प्रदेश में हमने एक व्यवस्था बनाई है, इस तरह के जो अपराध है उनको चिन्हित अपराधों की श्रेणी में सम्मिलित करके और
और रिकॉर्ड समय में कैसे कठोर सजा दें, इसकी कोशिश भी करेंगे। हम लोग कुछ आउट ऑफ वे जाके भी कुछ करने की कोशिश करते हैं। दुष्कर्मी हैं, कहीं उसका अवैध निर्माण है तो उसको तोड़ दो, डरे को, परेशान को, इस तरह की चीजें भी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस पर एक बार और गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि समय की सीमा है। इसलिए अंत में विनम्रता पूर्वक एक निवेदन में और करना चाहता हूं, जिसकी तरफ अब न्यायपालिका सचमुच में ध्यान दे रही है। न्याय की भाषा मातृभाषा क्यों नहीं हो सकती, ये हम सबको गंभीरता से सोचते हैं। आज भी गांव का आदमी, आज भी मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, 92% लोग यहाँ अंग्रेजी नहीं जानते। और जब वो विवेकी अभी कह रहे थे कि जरा पढ़ के ही दस्तखत करना चाहिए, तो जो फैसला सुनता है बेचारा पढ़ ही नहीं सकता, उसको पता ही नहीं, उसको वकील के पास या अंग्रेजी जानने वाले के पास ही जाना पड़ेगा। देश में बहुत गंभीरता पूर्वक इस पर विचार चल रहा है। और मैं दो लोगों को प्रणाम करना चाहूंगा। एक श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हिंदी में जाके सबसे पहले भाषण दिया था और भारत की मातृभाषा को प्रतिष्ठित। और दूसरे वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, बिना किसी झिझक के दुनिया में कहीं भी जाए अपनी भाषा में बोलते हैं और सारे देश का सीना गर्व से फूल जाता है। तो मेरी प्रार्थना है कि अब समय आ गया है, न्याय की भाषा मातृभाषा हो, कर्नाटक में कन्नड़ हो, तमिलनाडु में तमिल हो, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में हमारी राजभाषा हिंदी हो, तो आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश में एक फैसला हमने किया है, मेडिकल की पढ़ाई भी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी इस साल से हिंदी में होगी। हिंदी समझ, जब दुनिया के अलग अलग देश, अब जापान में अंग्रेजी में नहीं होती, जर्मनी में अंग्रेजी में नहीं होती, रूस में रशियन में नहीं होती, तो मध्य प्रदेश या भारत में मातृभाषा या हिंदी क्यों नहीं, इस पर आप जरूर विचार करें। एक बार में फिर जस्टिस जे.एस. वर्मा के चरणों में प्रणाम करते हुए और इस कार्यक्रम में पधारे हुए हैं आप, इसलिए आप सबका स्वागत हृदय से करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार। माननीय मंत्री महोदय जी का हार्दिक धन्यवाद। And ladies and gentlemen, today's occasion is graced by आज हमने जवाहरगंज वार्ड 22 नंबर, जो कि दीनदयाल मंडल के अंतर्गत आता है, इसमें हमने सभी सफाई कर्मियों का सम्मानित श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज सभी सफाई कर्मियों का विशेष रूप से सम्मान रखा है। सम्मान के साथ उनमें जो आवश्यक चीज़ें हैं, जो घर में उपयोग होने वाली, उन चीज़ों का सामान का वितरण भी किया है और माल्यार्पण कर सभी को सम्मानित किया है, जिससे कि हमारे इस वार्ड के साथ साथ पूरे जबलपुर की सफाई का अच्छा उनमें जज्बा है। सफाई करने में पीछे ना हटें और वार्ड को स्वच्छ रखें, ऐसा सबसे हमने बोला है कि माननीय मोदी जी के जन्मदिन को जो साप्ताहिक जो अपना ये कार्य चल रहा है, इसमें हमारा वार्ड अग्रणी रहे। सभी वार्डों से ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। इसी तारतम्य में आज जवाहरगंज वार्ड में सम्मान के साथ साथ हमारे बीच में दीनदयाल मंडल के अध्यक्ष महोदय, हमारे नीटू भाई, साथ में हमारे चक्रेश नायक जी, हमारे सुरेंद्र राठौर जी, सभी यहाँ उपस्थित हैं। अपने यदुवंश मिश्रा जी, अरुण विश्वकर्मा, सभी यहाँ उपस्थित हैं। सबका आज मैं स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ और मोदी जी को पुनः जन्मदिन की हृदय से दिल से बधाई देता हूँ। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज शंकर शाह, रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस है। ये ऐसे वीर शहीद बाप बेटा और राजा थे जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान देकर भी आज़ादी में योगदान दिया। इसी जगह पर अंग्रेजों ने तोप के मुंह से बांध करके हमारे वीर शहीदों को चिथड़े उड़ा दिए गए। आज उनकी जयंती पर हम नमन करने यहाँ आए हैं। इस देश की आज़ादी चंद पेट कोट टाई वालों ने नहीं दिलाई, हजारों हजार हमारे आदिवासी वीरों ने भी जान की बाजी लगाई। चाहे टंटा मामा हो, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे भीमा नायक हो, चाहे शंकर शाह, रघुनाथ शाह हो। लेकिन दुख तब होता है
जब हम आजादी के इतिहास देखते हैं कि जिन्होंने उंगली नहीं कटाई उनके शहीदों में नाम है, और जिनके चिथड़े उड़ गए उनके लिए दो लाइन नहीं। हम तो चाहते हैं कि इनका बलिदान देश के आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाया जाए, पुस्तकों में शामिल किया जाए कि देश कैसे आजाद हुआ। आज हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने, अभी मैं जब वन मंत्री था, वन मंत्री के पहले ट्राइबल मंत्री था, हम लोगों ने यहाँ शुरू करवाया है। सामाजिक लोगों की सहभागिता से हम इसको ऐसा दिवस बनाना चाहते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी उसे याद रखे और श्रद्धा सुमन अर्पित करे। आज पुणे में नमन करता हूँ और इस जगह को, इस स्थान की माटी को चूमते हुए हम देश की भावी पीढ़ी को बतलाना चाहते हैं। वन विभाग का हमारा सामने ऑफिस था, जहाँ पर यहाँ पर तोप के मुंह में बांधकर इनके चिथड़े उड़ाने के पहले यहाँ उनको 3 दिन तक बंदी बना के रखा गया वन विभाग में। वो वन विभाग का पूरा ऑफिस मैंने संग्रहालय बनाने के लिए दे दिया है। यहाँ पर बड़ा म्यूजियम, बड़ा संग्रहालय, बड़ा सांस्कृतिक केंद्र हम इनके नाम पर बनाने जा रहे हैं। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं हमारी सरकार और हम सब लोग मिलके। आज पुणे गौरवान्वित हैं कि देश की आज़ादी में हमारे अमर शहीदों ने, हमारे आदिवासियों ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह की याद में जो उनका आज बलिदान दिवस मनाया जा रहा है, ऐसे सपूतों को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं कि हम सर झुकने नहीं देंगे, सर कलम कर दो। ऐसे शंकर शाह रघुनाथ शाह को हम प्रणाम करते हैं, जिनको आज़ादी के बदले तोप से उड़ा दिया गया। आज उनका बलिदान दिवस है, 165वां बलिदान दिवस है। हम उनकी शहादत को याद रखेंगे और उनके नाम पर नई नई योजनाएं निकलें, उनको भूला ना जाए, उनको इतिहास में अमर कर दिया जाए। इसी तारतम्य में माननीय उपराष्ट्रपति जी यहाँ पधारे, हम उनका भी नमन करते हैं, वंदन करते हैं। यह सौभाग्य है कि गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ को माननीय उपराष्ट्रपति का एक संदेश मिला और वो आज संदेश पूरा हुआ कि बलिदान दिवस में माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय मध्य प्रदेश के राज्यपाल जी और माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ। उन्होंने राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया और सभी आदिवासियों को आगे बढ़ने का एक हाथों से आह्वान किया कि हम आपके साथ में हैं। हम उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि जबलपुर आए और यहाँ पर सभी आदिवासियों को उन्होंने आश्वस्त किया कि आगामी समय में हम जितनी भी जरूरतें पूरी करेंगे। किंतु शंकर शाह रघुनाथ शाह जी जैसा वीर और पुत्र जैसा वीर कोई नहीं हुआ। आज इस मौके पर हम उनके याद कर रहे हैं। ये 1980 से हम ये कार्यक्रम मनाते आ रहे हैं। ये मूर्ति हमारे सम्मानित दिग्विजय सिंह जी और हमारे दुबे जी ने, ये जगह दुबे जी ने दिया और मूर्तियां बनवाई हमारे मुख्यमंत्री जी ने। कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद।